आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। During the last 9 years, India has become the 5th largest global economy. This is the result of our sustained efforts. We embarked on the journey of reform, perform, and transform in 2014. We have increased competitiveness and enhanced transparency. We have expanded digitization and promoted innovation. We have established dedicated freight corridors and built industrial zones. We have moved away from red tape to red carpet and liberalized FDI flows. Initiatives like Make in India and Atmanirbhar Bharat have given a boost to manufacturing. Above all, we have brought policy stability. We are committed to make India the 3rd largest global economy in the next few years. Friends, current global challenges from the pandemic to geopolitical tensions have tested the world economy. At G20, it is our responsibility to rebuild confidence in international trade and investments. We must build resilient and inclusive global value chains that can withstand future shocks. In this context, India's proposal to create a generic framework for mapping global value chains is important. This framework aims to assess vulnerabilities, minimize risks, and enhance resilience. Excellencies, technology's transformative power in trade is undeniable. India's shift to an online single indirect tax, the GST, helped create a single internal market boosting interstate trade. Our unified logistic interface platform makes trade logistics cheaper and more transparent. Another game changer is open network for digital commerce, which will democratize our digital marketplace ecosystem. We have already done that with our unified payments interface for payment systems. Digitizing process and use of e-commerce have the potential to enhance market access. I am glad that your group is working on the high-level principles for the digitization of trade documents. These principles can help countries in implementing cross-border electronic trade measures and reduce compliance burdens. As cross-border e-commerce continues to grow, there are challenges as well. We need to work collectively to ensure equitable competition between large and small sellers. We also need to address the problem faced by consumers in fair price discovery
and grievance handling mechanism. Excellencies, India believes in a rule-based, open, inclusive, multilateral trading system with the WTO at its core. India had advocated the concerns of the Global South at the 12th WTO Ministerial Conference. We were able to forge consensus on safeguarding the interests of millions of farmers and small businesses. We must pay more attention to MSMEs, given their key role in the global economy. MSMEs account for 60 to 70% of employment and contribute 50% of the global GDP. They need our continued support. Their empowerment translates to societal empowerment. For us, MSME means maximum support to micro, small and medium enterprises. India had integrated MSMEs into public procurement through our online platform, Government e-Marketplace. We have been working with our MSME sector to adopt the ethos of zero defect and zero effect on the environment. Increasing their participation in global trade and global value chains has been a priority of the Indian presidency. The proposed Jaipur initiative to foster seamless flow of information to MSMEs will address the challenge of inadequate access to market and business-related information faced by MSMEs. I am also confident that the upgrade of the Global Trade Help Desk will increase participation of MSMEs in global trade. Excellencies, it is our collective responsibility as one family to restore confidence in international trade and investment processes. I am confident that you will work collectively to ensure that the global trading system gradually transitions into more representative and inclusive future. I wish you all success in your deliberations. Thank you. Thank you very much. अपना संबोधन दे रहे थे। कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, ये कहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया को भारत से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी आप सुन रहे थे, जिसको लेकर के वो अपना संबोधन दे रहे थे। कई बड़ी बातें उन्होंने कही। मेक इन इंडिया से उत्पादन को बढ़ावा मिला है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है। तो दुनिया को भारत से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। तो G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और कई बड़ी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेक इन इंडिया से उत्पादन को बढ़ावा मिला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लवली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लवली, देखिए G20 को लेकर के अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया और कई बड़ी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं।
देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री के संबोधन से एक बात तो स्पष्ट है कि भारत जो है वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने के साथ साथ ही एक मजबूत स्तर पर जो देश विकसित नहीं है और जो विकसित देश नहीं है और जो विकसित देश है उनके बीच में एक सेतु का काम करने जा रहा है। आज भारत को मेजबानी मिली है और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहित उनकी जो पूरी टीम है इस पूरे इवेंट को लेकर के, इस पूरी बैठक को लेकर के जो तैयारियां की गई है वो काबिले गौर है कि तमाम मंत्रियों से लेकर के तमाम जो मसले जो रखे जा रहे हैं मंत्रियों के साथ में जो बैठक होने जा रही है उन पर ऐसे मसले रखे जा रहे हैं जिन पर आज तक चर्चा की नहीं गई। ऐसे गंभीर मसलों को रखा गया है। जो निचले स्तर के जो व्यापार है उस पर बात जो है वो यहां पर की जाएगी। इसके साथ ही जयपुर चैप्टर पर भी बात की जाएगी। जो एमएसएमई सेक्टर के अंदर, जो जयपुर के अंदर जो हैंडीक्राफ्ट कला से जुड़े हुए जो उद्योग हैं, छोटे उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उस पर एक बड़ा मंथन जो होगा वो यहां पर होगा। ब्राजील के जो मंत्री हैं वो यहां पर उनका भी संबोधन होगा। इसके साथ में इंडोनेशिया के जो मिनिस्टर हैं उनका भी यहां पर संबोधन होगा। बाकी यहां पर चर्चा होगी और चर्चा के दौरान निवेश की जो पॉलिसीज हैं, भारत की पॉलिसीज और तमाम देशों की जो पॉलिसीज हैं उसको लेकर के बातचीत की जाएगी। G20 समूह के तमाम मंत्री इस पर जो है वो गहन मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। पूरे दिन भर बैठकों का दौर चलेगा। 2 सेशन आयोजित किए जा रहे हैं। दोनों सेशन के अंदर जो मंत्री पीयूष गोयल हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ में मौजूद रहेंगे। भारत सरकार के तमाम बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक को लेकर के जयपुर को इसलिए चुना गया क्योंकि जयपुर अपने आप में एक बड़ा कैपिटल कहा जाता है, बिजनेस कैपिटल कहा जाता है। और बिजनेस कैपिटल होने के साथ साथ यहां पर जो आर्ट, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए जो बड़े उद्योग हैं वो उद्योग जो है वो यहां पर बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहां पर काम होता है और इसीलिए जयपुर को चुना गया है। हर जो मंत्री समूह का जो पदाधिकारी है वो जयपुर आना चाहता था। इससे पहले उदयपुर में बैठक हुई, 3 बैठकें हो चुकी है पहले, लेकिन ये चौथी और महत्वपूर्ण बैठक जो है वो जयपुर में आयोजित हो रही है। कल ही मंत्री पीयूष गोयल से जब न्यूज 18 ने सवाल किया था कि इस G20 की बैठक का क्या लाभ मिलने वाला है देश को, आने वाले समय में क्या होगा, तो उनका कहना था कि आने वाले 10 सालों के अंदर जो देश की इकोनॉमी है वो 10 गुना बढ़ने जा रही है। 350 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी पहुंचाने की बात उन्होंने कही कि वहां तक पहुंचने की उम्मीद है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जो है वो इस इकोनॉमी को के पास पहुंचने के साथ साथ ही अविकसित देशों को अपने साथ में लेकर के G20 समूह की मेजबानी जरूर हमें मिली है, लेकिन मेजबानी के साथ साथ ही पूरी तरीके से जो देश के अंदर जो ट्रेड का माहौल है उस माहौल को बदलने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और विदेशी निवेश जब देश के अंदर आएगा, देश का पैसा देश में रुकेगा, तो जाहिर तौर पर इकोनॉमिकल रूप से, फाइनेंशियल रूप से देश के तमाम उद्यमियों को, तमाम उद्योगों को एक जीवन दान मिलेगा। आज जयपुर के तमाम जो व्यापारी हैं, चाहे वो जो आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े व्यापारी हों, ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े व्यापारी हों, तमाम लोगों को यहां पर मंच दिया गया है। एक एग्जीबिशन भी लगाई गई है। वहां पर जयपुर और राजस्थान से जुड़े जो तमाम प्रोडक्ट हैं वो यहां पर पेश किए गए हैं। कोटा की डोरिया की साड़ी पेश की गई है, जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर पेश किया गया है। तमाम चीजों को पेश करने के साथ साथ ही जयपुर में जो ज्वेलरी का काम है, जो नक्काशी का काम है, जो चूड़ी बनाने का काम है, तमाम जो कलाकार हैं जो उन्हें यहां पर मौका दिया गया, मंच दिया गया। कुटीर उद्योग से जुड़े लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। सेशन के दौरान जो है तमाम जो देशों के मंत्री हैं, G20 समूह के जो तमाम देशों के जो मिनिस्टर हैं वो इस पर मंथन कर रहे हैं। राजस्थान के बारे में जानेंगे, देश के बारे में जानेंगे और पिछली जो 3 बैठकें हुई है उसमें जो कुछ मंजूर किया गया तब तक का जो एजेंडा रहा है उसे यहाँ पर सबमिट किया जाएगा, उस पर भी बिल्कुल लवली। देखिए, G20 समिट की ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना संबोधन दिया और उसके बाद से आज कहा जा रहा है कि 350 डेलीगेट्स है वो जयपुर पहुंचेंगे और आज देखना होगा जब ये बैठक होगी क्या तस्वीर निकल करके सामने आती है, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग तैयारी भी की गई है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। एक